Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today is our third lecture on differential equation. This is the layout of the lecture. First, I will give you a recall of the lecture which we have studied before, and today we are going to start a new topic that is related with higher order differential equations. Initially, we will study the basic terms of higher order differential equation. The terms are linear differential equation, initial value problem. You are quite familiar with this concept, initial value problem, boundary value problem, linear dependent and independent equations. Wronskians is basically used to find linearly dependency of the variables. Finally, there are some practice questions related to all these topics. First, let me recall you what we have studied in the last lecture. In the last lecture, we studied two applications related to first order differential equation. One of the application was population dynamic and the second one was radioactive decay. In these two applications, we have studied that population dynamic, rate of change of population dynamic is related to initial population. Same is the case, radioactive decay is related to the initial amount of the substance. Population dynamic was the rate of change of the population is proportional to the existing population. This is the basic equation. Rate of change, where P represents the population, is related to where K represents the constant of proportionality. P is the initial population. If you solve this equation, this is a simple first order differential equation. We have studied it. It was a separable equation. You can also say it is a linear equation. इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करें, चाहे सेपरेबल से सॉल्व करें या लीनियर से सॉल्व करें, we will get this equation simple by integrating or by using the concept of integrating factor. ये हमारे पास रिलेशन आएगा, which can be written as like this. This was the initial condition. जैसे मैंने आपसे लास्ट स्लाइड में कहा था कि you are bit familiar with the initial value problem. Initial value problems वो होती हैं problems means ऐसी differential equation जिसके अंदर initial condition given हो, उसे initial value problem कहते हैं. Initial condition ये कहती है कि when time starts, time 0 का मतलब होता है when the time starts, this is the amount of population. If we have this kind of data, put t equals to 0 and p equals to p naught, you will get the value of c equals to p naught. Finally, this is the final information we get, where p naught represents the initial population, k represents the constant of proportionality, t is the time, and p represents the population at any instant. If the value of k is greater than 0, represents the growth, k is less than 0, represents the decay. ये वो सारा काम है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. सेकेंड जो चीज हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, दैट वाज related with the radioactive decay. This radioactive decay is also related to the amount of the substance. dA by dt is equals to k, where k is again the constant of proportionality. A is the amount of that substance. Again, if we have the initial condition, when the time starts, when the decay starts, this is the basic amount, then that differential equation will give us the solution in this form. In radioactive decay, the concept of
half-life, here we use the capital T to represent the half-life. The concept of half-life is adopted. Half-life is the time when the amount is reduced to half, just like if A naught represents the total amount, after a time t we will get the half of the amount. जहाँ पर A लिखा है वहाँ A naught by 2 पुट कर दें, जहाँ पर T लिखा है वहाँ पर कैपिटल T पुट कर दें, we will get this as a final relation. By using this equation, we can find the value of k. We can find if this t is known, we can find this t if k is known. So हम दोनों में से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is the equation, the relations related to the radioactivity K. अभी तक मैंने आपको जस्ट रिकॉल किया है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को. आज के टॉपिक में जैसे मैंने पहले बताया, वी विल स्टडी द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे linearity of higher order differential equations. Here comes the higher order differential equation. First I will explain what is meant by higher order, then I will explain what is linear differential equation. एक linear differential equation फर्स्ट ऑर्डर की आप पहले स्टडी कर चुके हैं. हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होती है उसको अभी स्टडी करते हैं. हायर ऑर्डर मीन्स ऑर्डर बेसिकली डेरिवेटिव को कहते हैं. हायर ऑर्डर मीन्स व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर देन वन, it is considered to be of higher order differential equation. For example, here we have nth order derivative and reduced up to 0th order derivative. In a simple word, if n represents 10, तो it means ये 10th order का derivative है, ये 9th order का derivative है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. This one represents the 1, and finally the 0th order derivative. 0th order means the dependent variable itself, where in n की वजह से इसे higher order कहते हैं. Where these coefficients explains the linearity of the differential equation. अगर ये जितने भी coefficients आ रहे हैं इन derivatives के साथ, ये सब के सब x के ऊपर डिपेंडेंट हैं. सेम इज द केस दिस फंक्शन g of x, ये सब के सब x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टेटमेंट कहती हैं where a naught, a1 up to an and g of x are functions of x. ये सिर्फ x के functions हैं, इसमें y नहीं आना चाहिए. And an of x must not be equal to 0 is called a linear differential equation if this first term must not be equal to 0. Now, if all these coefficients are considered to be the function of x, if these coefficients are not depending on x, then these are called the constants. These variables, these coefficients could be the constants. जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाते हैं, then the differential equation is called a linear differential equation with constant coefficients. जो इक्वेशन यहाँ ऊपर रिप्रेजेंट की गई है, it is basically a non-homogeneous differential equation. Non-homogeneous because जो right hand side पे अगर g of x की जगह पे 0 आ जाए, then it is called a homogeneous differential equation. अगर g of x की जगह पे 0 ना आए, कोई भी और नंबर आ जाए या कोई भी फंक्शन ऑफ x आ जाए, then it is called a non-homogeneous differential equation. ये non-homogeneous differential equation है
इससे एसोसिएटेड अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो सिंपली पुट g ऑफ x इक्वल्स टू 0। जो नई इक्वेशन बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम स्टडी करते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। Initial value problem. Any differential equation, this equation is basically a differential equation. अगर हम इसके कोफिशिएंट्स चेक करें तो कोफिशिएंट सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, so it is a linear differential equation of higher order. This linear differential equation of higher order contains the boundary condition at contains the initial condition at one point, just like y x naught equals to y naught, y prime of x naught is equals to y naught prime. एक ही पॉइंट के ऊपर अगर सारी कंडीशंस गिवन हो then these conditions are called initial conditions and the whole problem is called initial value problem. Where y naught prime, y naught n minus 1 being arbitrary constants means के ये जो हमारे पास टर्म्स होती हैं ये सारे arbitrary constants होते हैं। The specific value are called initial conditions. Here let us discuss one of the example. हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सेकंड ऑर्डर की है। We take the coefficients as the function of x, where g of x is also the function of x. ये सेकंड ऑर्डर है। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होंगी वो एक पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए और ये सेकंड ऑर्डर है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर तक होनी चाहिए। दैट मीन्स पॉइंट इज एक्स नॉट, यहाँ पर भी एक्स नॉट, ये बात ठीक होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने देखनी है वो ये कि यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो कंडीशन 1 तक होनी चाहिए, तो 1 तक गिवन है, सो इट इज बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हियर इज द एग्जांपल। क्वेश्चन बेसिकली इस फॉर्म के होते हैं। अगेन सेकंड ऑर्डर, कोफिशिएंट्स आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स, ठीक हो गया। पहली कंडीशन y of 1 equals to 2 and y prime of 1 is equals to 3। एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों कंडीशंस गिवन है, ऑर्डर 2 है, सो कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव तक गिवन है, सो इट इज अगेन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और यूनिक होना चाहिए। इसे हम कह देते हैं थ्योरम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस डिपेंड करती है जितने भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं उनके ऊपर, और जो नॉन होमोजेनियस पार्ट ऑफ द इक्वेशन होता है उसके ऊपर। थ्योरम ये कहता है कि इफ एवरी कोफिशिएंट इज कंटिन्यूस ऑन स्पेसिफिक इंटरवल, जिस इंटरवल की बात हो रही है उसी इंटरवल जो डोमेन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की उस इंटरवल की बात हो रही है, एंड लेट an must not be equals to 0, an of x 0, ये जो जैसे इफ वी टेक दिस एन एग्जांपल, जो फर्स्ट हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट होगा ये 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x, एंड इफ x is equals to x naught, then a solution of the initial value problem exists on I and is unique। अगर ये सारी बातें होती हैं कि कोफिशिएंट्स कंटिन्यूस हैं और जो हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट है वो 0 भी नहीं है, then we say that कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होता है कि वो अकेला सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा।
तो आप जितने भी स्टूडेंट्स उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबका सोल्यूशन सेम होना चाहिए, डिफरेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल इसी थ्योरम से रिलेटेड है। वेरीफाई द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y की फॉर्म में। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हियर दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ए की पॉइंट के ऊपर उसकी कंडीशंस गिवन है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और फर्स्ट ऑर्डर तक की कंडीशन गिवन है और ए की पॉइंट के ऊपर गिवन है, सो वी कॉल दिस एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगर ये y जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये सॉल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टी है। टेक द डबल डेरिवेटिव ऑफ y, यहां पर पुट कर देंगे, y को यहां पर पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 12x ही आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग द डबल डेरिवेटिव लिया y का, वी विल गेट 12 e पावर 2x plus 4 e power minus 2x, and after that put on the left hand side of this differential equation. इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं d square y by dx square minus 4y, left hand side basically this is the left hand side. We will get after solving and putting the values 12x and which is equals to the right hand side. Further अब हमने ये भी वेरीफाई करना है जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है प्लस इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। सो हम जहां पर x लिखा है वहां 0 पुट करेंगे और जहां पर y लिखा है 4 आंसर आना चाहिए। पुट x इक्वल्स टू 0, यू विल गेट द सेम जैसा कि इनिशियल कंडीशन में है, देन इट्स ओके। फॉर द अदर इनिशियल कंडीशन टेक द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर जहां पर जो x लिखा है वहां 0 पुट कर दें, 1 आंसर आना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करें, सॉल्व करें, 1 इज द आंसर। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई हो जाएं देन वी से दैट y इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब आगे बात सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब ये चेक करना है भाई विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट जो सॉल्यूशन आया है ये यूनिक है या इस जैसे और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कंडीशन ये कह रही थी कि फर्स्ट कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, द इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसके कोएफिशिएंट सारे कांस्टेंट्स हैं, फंक्शंस नहीं हैं। द फंक्शन g of x, यहां पर g of x की बात हुई थी, the function is a polynomial so it is a continuous function. The leading coefficient जो first coefficient है that is 1 is not equals to 0, वो बात भी हो गई कि सारे continuous पे हों और leading coefficient 0 के इक्वल भी ना हो, then एक ही solution exist करता है। अगर वो आपके पास आ चुका है तो इसके अलावा और कोई भी solution exist नहीं करता जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, डिफरेंशियल इक्वेशन को और बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। द इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और जितने भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सब के सब कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं। अगर सब कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट है, हियर वी हैव द इनिशियल कंडीशन, ये भी 1 पे गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंडीशन ये भी 1 पे गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव कंडीशन, सेकंड डेरिवेटिव तक कंडीशन इसलिए गई है क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थर्ड ऑर्डर की थी। अब सॉल्यूशन और यूनिकनेस के बारे में जो थ्योरम था वो ये स्टेटमेंट देता है कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस हों और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है जो यहाँ पर 3 है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है, ये बात ट्रू हो गई। जी एफ एक्स भी कांस्टेंट कंटिन्यूस है और ये सारे कंटिन्यूस हैं, सो कंटिन्यूटी की कंडीशन भी होल्ड कर गई। सो इसका मतलब है इट कंटेन्स ओनली वन सॉल्यूशन।
एक से ज्यादा नहीं होगा। इफ यू कैन सी हियर, अगर y की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, y को 0 लेट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है और सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती हैं। सो y इक्वल्स टू 0 इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है और थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये कहा था कि अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो इसका एक ही सॉल्यूशन आता है। अगर एक सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिया है y इक्वल्स टू 0, देन इट इज the only solution of this differential equation with the initial condition. That means the equation is homogeneous. Homogeneous जब भी differential equation आती है तो y equals to 0 एक solution उसका automatic आ जाता है। The coefficient of the equations are constants. Being constant, the coefficients are continuous. Leading coefficient 3 था, not equal to 0. Hence y equals to 0 is the only solution of the initial value problem. Now move toward one more example. Consider the function, this is the function, and the initial value problem, this is the initial value problem, this is the differential equation. Differential equation second order तक है, so हमारे पास जो initial condition given होगी वो first order तक होनी चाहिए। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सोल्यूशन है तो फिर उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ थ्योरम हमने ये वेरीफाई करना है कि इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये सोल्यूशन एक से ज्यादा है। वेरीफाई करने का प्रोसेस वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। डबल डेरिवेटिव लें, यहाँ पुट करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव लें, इसी का पुट करते हैं, y को इसी का पुट करते हैं, 6 आंसर आना चाहिए जो कि यहाँ पर आ चुका है। x की जगह 0 पुट करें, y 3 आंसर आना चाहिए, 0 पुट किया, y का 3 आंसर आया। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर x की जगह 0 पुट करें, 1 आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आ गया। Hence the solution of the initial value problem is not unique. Not unique की बात उन्होंने क्यों की? Because थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही थी कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इंक्लूडिंग दिस g of x, they must be continuous. ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारे कंटिन्यूस हो गए। सेकेंड उन्होंने ये कंडीशन दी थी कि जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है, हियर इज द एक्स स्क्वायर, एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल हो जाता है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता तो एक ही सोल्यूशन है, और अगर ये 0 के इक्वल हो जाए जैसे कि इस एग्जांपल में हो गया है, then it contains more than one solution. So ये 0 के इक्वल हो गया। So जो सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो अकलौता सोल्यूशन नहीं है, और भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के। Now comes to the concept of boundary value problem. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कंडीशंस गिवन होंगी, वो दोनों कंडीशंस टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर होती हैं, देन वी कॉल इट एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की है, एग्जाम्पल के तौर पर सेकंड ऑर्डर सेलेक्ट की है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ किसी भी ऑर्डर की हो सकती थी। अगर इसकी कंडीशंस टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर गिवन हो, then we say that it is a boundary value problem from the point A to the point B, हमारे पास boundary conditions given है। Here we take second order differential equation, और ये जो second order differential equation है इसकी जो possible
बाउंड्री कंडीशंस बनती हैं ए पॉइंट के ऊपर, इफ वी कंसिडर दिस एज अ रॉड, इफ वी टेक जहाँ पर 0 लिखा है एज अ पॉइंट ए, जहाँ पर एल लिखा है वो एज अ पॉइंट बी, तो पॉइंट ए के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि आपको सिंपल एक वैल्यू गिवन हो, ये भी पॉसिबिलिटी है एक डेरिवेटिव गिवन हो। सिमिलरली पॉइंट बी के ऊपर आपके पास एक वैल्यू गिवन है। दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ derivatives and non-derivative term. So we have this 4 pair possibility जो हमारे पास किसी भी किस्म की बाउंड्री कंडीशन आ सकती है at 2 different points. Let us take an example. उसी तरह की एग्जाम्पल है y equals to some function. We have to prove that this y is the solution of बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसे बाउंड्री वैल्यू क्यों कहा है? क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है, y ऑफ 1 एंड y ऑफ 2। पहले चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। डबल डेरिवेटिव लें, इस जगह पुट करें, सिंगल डेरिवेटिव लें, इस जगह पुट करेंगे और y की जगह y पुट कर देंगे। बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, इफ यू गेट द सेम आंसर एज ऑन द राइट हैंड साइड, then we say that this y is a solution of that differential equation. अब ये चेक करते हैं ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन चेक करते हैं, जहां पर x लिखा है वहां 1 पुट कर दें, y का आंसर 0 आना चाहिए। जहां x लिखा है वहां 1 पुट करेंगे, अगर 0 आंसर आता है देन गुड। जहां x लिखा है वहां 2 पुट कर दें, 3 आंसर आना चाहिए। जहां x लिखा है वहां 2 पुट किया, वी गेट द आंसर 3, so it's good. Therefore the function y satisfies both the differential equation and the boundary condition, hence y is the solution of the boundary value problem. The boundary value problem may have several solutions, a unique solution or no solution. इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में। Let us take one more example. Here we take y equals to c1 cos of 4x plus c2 sin of 4x. ये एक फंक्शन गिवन है। We have to verify वो इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए टेक द सेकंड डेरिवेटिव, इस जगह पे पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y एट दिस पोजीशन, आंसर 0 आना चाहिए। तो सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वी सक्सेसफुली फाउंड कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द इनिशियल कंडीशंस। जहाँ पर x लिखा है वहाँ 0 पुट कर दें, अगर y का आंसर 0 आता है तो वो सोल्यूशन है। जहाँ पर x लिखा है नाउ वी विल अप्लाई द इनिशियल कंडीशन एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 को पुट कर दें, वी विल गेट c1 cos of 0 plus c2 sin of 0, we will get c1। आंसर आना क्या चाहिए था 0। So if c1 is equals to 0 तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर c1 0 नहीं है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हमें उसे सॉल्यूशन वेरीफाई करना है कि उसे सॉल्यूशन बनाना है। So we consider c1 equals to 0। अगर c1 को 0 करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी, ये पूरी टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगी बिकॉज c1 इज 0। अब y हमारे पास क्या रह जाएगा c2 sin of 4x। अब y इक्वल्स टू c2 sin of 4x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। दूसरी इनिशियल कंडीशन को चेक करते हैं। अब दूसरी इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि जहां पर x लिखा है वहां पाई बाई 2 पुट कर दें, y का आंसर 0 आना चाहिए।
यहाँ पर x लिखा है, वहां π/2 पुट कर दिया, वो ये बन गया। हमें इतना पता है कि साइन ऑफ 2π 0 होता है। अगर ये 0 होता है तो इट मीन्स C2 की वैल्यू 1 अगर आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली 0 होता है। सो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन विदाउट एनी प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स C2 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे C1 की एक फिक्स वैल्यू आ गई है, C2 की कोई वैल्यू नहीं आई। C2 की जब वैल्यू नहीं आई तो इट मीन्स C2 की वैल्यू आप 3 भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 भी अप्लाई कर सकते हैं, और C2 की जगह पे आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट C2 की वैल्यू 1 रखता है तो वो एक सोल्यूशन होगा, C2 की वैल्यू 2 रखता है तो दूसरा सोल्यूशन होगा, C2 की वैल्यू 3 रखता है तो तीसरा। C2 की वैल्यू चेंज करते रहें, जितनी वैल्यूज रखेंगे उतने सोल्यूशन। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। Let us take one more example. In this example, we are asked to find the solution of this differential equation satisfying the boundary conditions at two different points, इस वजह से इसको हम बाउंड्री कंडीशन कह रहे हैं। इस चीज़ की डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये बात का लेक्चर है कि ये सोल्यूशन कैसे आया। यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात करके इसे क्लोज करता हूँ कि सोल्यूशन कैसे आया। हम इसे लास्ट एग्जाम्पल से पिक कर रहे हैं क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास सेम डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यहाँ पर हम वही सोल्यूशन उठा रहे हैं जो पिछले एग्जाम्पल में था। फर्स्ट टेक सेकेंड डेरिवेटिव, पुट इट हेयर इन द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर y लिखा है, वहाँ y की वैल्यू पुट कर दें। अगर सेटिस्फाई होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है जो ऑलरेडी लास्ट एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो गया था। सो अभी यहाँ पर नहीं करता मैं। अब आ जाती है बात बाउंड्री कंडीशंस की। जहाँ पर x लिखा है वहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट कर दें, और y का आंसर 0 आना चाहिए। जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट कर दें, y का आंसर 0 आना चाहिए। अगेन फॉलोइंग द सेम स्टेप यू विल गेट C1 इक्वल्स टू 0। जहाँ पर x लिखा है वहाँ π/8 पुट कर दें, आंसर 0 आना चाहिए। जहाँ x लिखा है वहाँ π/8 पुट कर दिया, यहाँ पर C2 भी 0। जब C1 भी 0, C2 भी 0, इसका मतलब है कि दोनों को मैं C1 को भी 0 कर दूं, C2 को भी 0 कर दूं, तो y मेरे पास ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। Is the only solution of the boundary value problem. So there is no any other option. This is the only solution of this boundary value problem. One more example. इस एग्जाम्पल को आप खुद देखने की कोशिश करें। इसमें जो थर्ड केस होता है, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन के 3 केसेस होते हैं। इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल नो सॉल्यूशन से रिलेटेड है। नो सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इसे आप खुद देखने की कोशिश करें। जब कंफ्यूजन होंगी तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, लीनियरली डिपेंडेंट। पहली बात कि लीनियरली डिपेंडेंट होता क्या है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। A set of functions, if we have n number of functions, n means n किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10, 20, 30 कुछ भी। If we have n number of functions, these are called linearly dependent on an interval I if there exist the constants C1 to Cn not all 0 such that the combination is equals to 0। अगर हम इन सारे फंक्शंस को एक कॉम्बिनेशन में लिखें प्लस या माइनस के साथ और आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, देन वी से दैट दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। सेकेंड ऑप्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। They are called linearly independent on an interval I if
this functions, this linear combination is equals to 0 only if the constants are zeros. For example, if I give you the example related to linearly dependent, if we have 2 of x plus 3 of y equals to 0, in a simple way, if you can write minus 2x by 3, then this relation is called linearly dependent. y x पे depend कर रहा हो, then the combination is called a linearly dependent function. अगर ऐसा हो कि मैं 2 की जगह पे 0 पुट कर दूं, y की जगह 3 की जगह पे 0 पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाए, तो अब मेरे पास x और y की इंफॉर्मेशन नहीं आई। जब मेरे पास x और y के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं आया, then I will say that they are linearly independent, कि वो आज़ाद हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं हैं। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वो एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आप छोटे छोटे सी प्रॉब्लम्स में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें हम लिनियरली डिपेंडेंट कहते हैं, जिसके अंदर एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक, सो ये जो डेफिनेशन है, इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह की टर्म बनती है। केस ऑफ टू फंक्शंस, जो भी मैंने आपसे ये बात कही थी, लेट अस टेक टू फंक्शंस, वन ऑफ देम इज f1, अदर वन इज f2। अगर ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। एंड इफ one function can be written in the form of another function minus c2 by c1 f2 of x, then they are called linearly dependent functions. Hence we can conclude that linearly dependent functions वो functions होते हैं जब एक function दूसरे का multiple होता है। One function can be written in the form of another function. Any two functions are linearly independent when they are not a multiple of each other. In general, a set of n function is linearly dependent if at least one of them can be expressed as a linear combination of the remaining. अगर एक फंक्शन बाकी सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, अगर एक फंक्शन भी दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर 10 फंक्शंस होते हैं f1, f2 अप टू f10, अगर मेरे पास सिर्फ f1 लिखा जा सकता है ऐसे, बाकी बेशक कोई भी ना लिखा जाए, एक भी अगर लिखा गया, they are linearly dependent. Example, we have a function f1 sin of 2x, f2 sin x cos x, linear combination c1 c2. if the linear combination is equals to 0 और c1 की वैल्यू भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, c2 की वैल्यू भी सेलेक्ट कर लेते हैं, then we say that these two functions are linearly dependent. Consider the function f1 cos square x, f2 sin square x. इसी तरह f3 एंड f4 हमारे पास फंक्शंस हैं। हम अगर कोई भी ऐसे c's फाइंड आउट कर लेते हैं जिनको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए, तो ये सारे फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। वन मोर एग्जांपल, और ये एग्जांपल आप लोगों के लिए ड्रॉप कर दी गई है कि आप इसे खुद अटेम्प्ट करें, c1 c2 c3 खुद ट्रेस करें, और इन अदर वर्ड्स आप एक फंक्शन को बाकियों की फॉर्म में अगर लिख लेते हैं, देन वी से दैट दे आर लिनियरली डिपेंडेंट। बाकी अब आप कैसे करते हैं ये अब आप लोगों पे है। Wronskian
बेसिकली डिटर्मिनेंट को कहते हैं फॉर द फंक्शन f1 to fn जिनके n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हों। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फॉर्म f1 to n-1 derivative, fn to n-1 derivative is called the Wronskian. With the help of Wronskians, we can find the functions are linearly independent or the functions are linearly dependent. If this determinant is not equals to 0, then we say that they are linearly independent. And if this determinant is equals to 0, then they are linearly dependent. Now we will solve the example with the help of a Wronskian. f1, f2, two functions. हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों linearly dependent हैं या नहीं. The Wronskian is function, उसका डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ओपन द डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 sin 2x. सिमिलरली बाकी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करें. इफ यू गेट द रिजल्ट इक्वल्स टू 0, then they are linearly dependent. अगर ये 0 ना आता, then it is linearly independent. Here we have also verified that one function, if it can be written in the form of another function, then they are linearly dependent. आप ये वो मेथड है जो Wronskian से पहले किया था, ये वो मेथड है with the help of Wronskians we verified that we will get the same result. Same. One more example. Function f1, f2. Find the Wronskian. Not equals to 0. So they are linearly independent. Example 3 उसी पैटर्न की है. एंड एग्जाम्पल 4 आप लोगों की चॉइस पे छोड़ दी है. आप लोगों ने इसे खुद सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है. Wronskian से मेथड से करते हैं तो भी ठीक है, अगर उससे पहले वाले फॉर्म से करते हैं तो भी इट्स ऑल अप टू योर चॉइस. प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फंक्शंस गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कंडीशंस गिवन है. कंडीशंस टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हैं. सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस. ये इनिशियल कंडीशंस नहीं है. वेरीफाई करना है ये जो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू दिस is the solution of this boundary value problem. Second, function is given, differential equation is given, conditions are at the same point, pi use हो रहा है तीनों conditions में. So initial condition, hence the problem is initial value problem. Verify करेंगे उसी पैटर्न के ऊपर जो ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं. Example 3, condition is at the same point, so initial condition, the problem is initial value problem. Some more examples related to linearly dependent and independent. With the help of Wronskians solve करने हैं कुछ questions, कुछ without Wronskians solve करने हैं. इन सब questions की practice करें और अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.